Dear students, let us start new chapter integrals, which is chapter number 7. Sir Isaac Newton and G. W. Leibniz developed the theory of integral calculus is in 17th century. Differential calculus is centered on the concept of the derivative. The original motivation for the derivative was the problem of defining tangent lines to the graphs of functions and calculating the slope of such lines. Integral calculus is motivated by the problems of defining and calculating the area of region bounded by the graph of function. Integration and differentiation are pair of inverse operation. So far, from a given function we have been finding the derivative, but the question arises, what is the function whose derivative is known? अभी तक हमने क्या किया था, कोई फंक्शन लेकर उसका डेरिवेटिव फाइंड किया था. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हमारे पास डेरिवेटिव दिया हो तो हम क्या उस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जिसका कि डेरिवेटिव ये दिया हुआ है. सपोज let fx equals to x to the power 4. Let fx equals to x to the power 4. Then derivative of this function equals to 4x cube. So the question arises, here, if fx equals to, if f dash x equals to 4x cube, then what is fx? What is fx? ओके, जब ये 4x क्यूब हमको मालूम है, f dash x 4x क्यूब मालूम है, तो फंक्शन क्या होगा? From our experience of derivative, we can say that fx equals to 4. From our experience, of derivative, we can say fx equals to x to the power 4. These x to the power 4, okay, these x to the power 4 is an antiderivative, or integral or primitive of the function, or primitive of function 4x cube. Okay, another question arises here. Another question arises here. Is x to the power 4 is the only, is x to the power 4 is the only function whose derivative is 4x cube? Answer is no. Answer is no. Why? Because derivative of x to the power 4 plus 1 is also 4x cube. Derivative of x to the power 4 plus 5 is 4x cube. Derivative of x to the power 4
plus root 2. It is also 4x cube. ये सभी functions के derivative 4x cube है. So every one of these have equal claim to be an integral of 4x cube. So if we say one function x to the power 4 is the integral of 4x cube, then many other functions are there which are integral of 4x cube. So we can say, or we can observe all functions of the form x to the power 4 plus c, where c is any real number or constant. Okay, c belongs to real number. Okay, are integral of 4x cube, and we can write integral of 4x cube equals to x to the power 4 plus c. So this leads to if derivative of fx equals to derivative of small fx, ये small fx है, is suppose capital Fx. Okay, derivative of small fx is capital Fx, then antiderivative or integral or primitive of this capital Fx will be small fx plus constant. ये देखा हमने कांस्टेंट क्यों लगाया, x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x टू दी पावर 4 प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 4x क्यूब, प्लस 5 कर दे उसका भी डेरिवेटिव 4x क्यूब. ओके, सो इन जनरल 4x क्यूब, x टू दी पावर 4 प्लस c का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब. तो इसीलिए 4x क्यूब dx का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ x टू दी पावर 4 प्लस c. तो इसलिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ले लेते हैं हम हमेशा. जब कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन आएगा, उसके बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ले लेते हैं, वेयर c इज इन रियल नंबर. ओके, हियर fx, स्मॉल fx is called antiderivative. Okay, small fx is antiderivative. और एंटीडेरिवेटिव को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल. और इंटीग्रल और प्रिमिटिव. Of small fx, sorry, of capital fx, means small fx is called antiderivative or integral or primitive of capital fx. Capital fx, इसका इंटीग्रल फाइंड किया हमने. ओके, ये क्या है स्मॉल fx. तो स्मॉल fx इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव, और ये कैपिटल fx इज कॉल्ड इंटीग्रैंड. And c is called integral constant or constant of integration. X is the variable of integration. The variable of integration. Okay, and this sign stands for integration.
इंटीग्रेशन में क्या यूज होता है, सम। सम किससे, वर्ड किससे स्टार्ट होता है, एस से। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल बनाने के लिए इस एस को क्या कर दिए, खींच दिया ऐसा ऊपर और नीचे, तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया एस। ओके, सो इफ इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस c। ओके, इसका इंटीग्रल 4x क्यूब का यही होगा। ठीक, तो इसमें ये x टू द पावर 4 ये क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, दिस इज एंटी डेरिवेटिव। 4x क्यूब ये हो गया इंटीग्रेंड, और ये c क्या है इसमें, कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। ओके, और ये सिंबल है किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक, कैसा, किससे बना, ये s से। The process of finding functions whose derivative is given is called anti-differentiation और integration। ये जैसे 4x क्यूब का हमने इंटीग्रल किया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब इज x टू द पावर 4 प्लस c। तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके, एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं, हम प्लस सी लिखते हैं। ओके, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक मीन्स नॉट डेफिनिट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। In integral calculus we come across two types of problem. First, the problem of finding a function whose antiderivative is given. Okay, and second, the problem of finding the area bounded by the graph of a function under the given condition. ठीक है, तो ये the problem of finding a function whose antiderivative is given वो अभी हम करेंगे। And the second one, the problem of finding the area bounded by the graph of the function under the given condition, ये next chapter में पढ़ेंगे, application of integrals में आएगा ये। Let us see some elementary standard integrals. First, integral of x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1, where n cannot be equals to -1। इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट, सो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x टू द पावर n प्लस 1 का। So this is equals to 1 upon n plus 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, n plus 1 into x to the power n plus minus 1 means x to the power n। तो ये दोनों कैंसिल, ये क्या आ गया, x to the power n means डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus 1 upon n plus 1 equals to क्या आया, x to the power n। Therefore antiderivative of x to the power n equals to, और इंटीग्रल ऑफ x to the power n equals to क्या आ जाएगा, x to the power n plus 1 upon n plus 1, where n cannot be equals to -1, और इसके साथ ही क्या आएगा, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे मीन्स ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1। ये क्या होगा, इस रिजल्ट से ऊपर जो देखा हमने रिजल्ट, उससे 1 को लिख सकते हैं आप x टू द पावर 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c।
मीन्स ये क्या आ गया x/1 और x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x प्लस सी। ओके, सेकंड इंटीग्रल ऑफ 1/x इक्वल्स टू log mod x प्लस कांस्टेंट। बच्चों के मन में हमेशा क्वेश्चन उठता है, जैसे ये उठता है कि प्लस सी क्यों लेते हैं, उसका रीज़न हमने देखा। ओके, ये mod x क्यों आता है, इसका भी रीज़न देखते हैं हम। इफ वी डिफ्रेंशिएट log x with respect to x, okay, then we get 1/x, here x is greater than 0। log x, ये x, ये डोमेन क्या होता है, ये किसके लिए डिफाइन होता है, x, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए। बट हम ऐसा कर दें log -x लिख दें और यहाँ पे डिफाइन कर दें कि x लेस देन 0, तो भी क्या आ जाएगा, log पॉजिटिव x ही आएगा यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x 1/-x। ओके, इस log का डिफरेंशिएशन, और चेन रूल से -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -1, तो ये भी क्या आ गया 1/x। ठीक है, तो log x और log -x दोनों का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है 1/x, तो इसीलिए log mod x का इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log mod x। log x और -x का डिफरेंशिएशन क्या आया था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा log mod x आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे log 1/x के साथ का जब इंटीग्रल करते हैं log के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इस x के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। ओके, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ और इंटीग्रल ऑफ a to the power x dx इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x इक्वल्स टू a to the power x सेम इंटू log a बेस e। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ a to the power x अपॉन log a बेस e इक्वल्स टू क्या आएगा a to the power x। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू a to the power x log a बेस e प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c लेंगे। ओके, और ऐसे ही जैसा डिफरेंशिएशन में देखा था आपने फॉर्मूले, उसको इससे रिलेट करके आप इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4, इंटीग्रल ऑफ e to the power x इज सेम प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा। फिफ्थ, इंटीग्रल ऑफ साइन x इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, है ना। एंड इंटीग्रल ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस कांस्टेंट। सेवंथ, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, आप कोरिलेट कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट। ओके, ये कहाँ चला गया, नेक्स्ट 8, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता था। ओके, एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। फर्स्ट, d by dx means derivative of integral of fx. Since integral and derivative both are opposite process, तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों ही
एलिमिनेट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा एफ एक्स। सेकेंड इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स, के इंटू एफ एक्स, तो ये जो कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है फंक्शन से वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल किसका होगा एफ एक्स का बस होगा। थर्ड इंटीग्रल ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, दो फंक्शन है सम के फॉर्म में, तो उनका इंटीग्रल क्या होगा, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ वन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ टू एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो इधर भी यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का साइन आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। फाइंड इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x। ओके, sin 2x। Solution of this question. We look for a function whose derivative is sin 2x. We look for a function whose derivative is sin 2x. For this, derivative of cos 2x, we know derivative of cos 2x. Cos 2x differentiation of cos 2x is minus sin 2x. ओके, ये cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन, और चेन रूल से इस 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2। ओके, ये आ गया। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 cos 2x और माइनस को भी यहाँ रख दें हम, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin x sin 2x। ओके, इट मीन्स sin 2x equals to derivative of -1/2 cos 2x। ठीक है, ये आ गया। therefore an antiderivative or integral of sin 2x is -1/2 cos 2x। इसी तरीके से देखते हैं cos 3x का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। सिंस डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इक्वल्स टू क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos और cos 3x और इस 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3, सो दिस इज 3 cos 3x। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/3 को इधर ले आते हैं, 1/3 सॉरी ये न्यूमरेटर में होगा, ओके 1/3 sin 3x इक्वल्स टू क्या आ गया cos 3x। ओके, ये और cos 3x कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x। therefore integral of cos 3x by the method of inspection is 1/3 sin 3x। ओके, ये आंसर आपका। नेक्स्ट e to the power 2x। सिंस डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x इक्वल्स टू सेम डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x क्या होता है सेम, और उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 2। दैट्स वाई डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e to the power 2x इक्वल्स टू e to the power 2x। सो e to the power 2x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e to the power 2x। ओके,
Therefore integral of e to the power 2x is 1 by 2 e to the power 2x. Next question number 4, ax plus b whole square. Since derivative of ax plus b whole cube equals to 3, ये ब्रैकेट पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, दिस इज n ब्रैकेट पावर n माइनस 1 देन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट. ओके, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ax प्लस b पावर n माइनस 1 मीन्स 2, और इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b इज 0, तो ये क्या आ गया 3a ax plus b whole square. So we can write derivative of 1 upon 3a ax plus b whole cube equals to ax plus b whole square. Okay, therefore integral of ax plus b whole square is 1 upon 3a ax plus b whole cube. Next question, sin 2x minus 4 e to the power 3x. तो ये दोनों के एंटी डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देते हैं. ओके, सिंस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x equals to minus sin 2x into 2, so derivative of minus 1 by 2 cos 2x equals to sin 2x. So that's why integral of sin 2x is minus 1 by 2 cos 2x. और सेकंड e to the power 3x का हम इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं. सिंस डेरिवेटिव ऑफ e to the power 3x equals to 3 into e to the power 3x, so derivative of 1 by 3 e to the power 3x equals to e to the power 3x. Therefore antiderivative or integral of e to the power 3x is 1 upon 3 e to the power 3x. That's why integral of sin 2x minus 4 e to the power 3x is, sin 2x का क्या आया था माइनस 1 बाई 2 cos 2x, और ये 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे e टू द पावर 3x का इंटीग्रल क्या आया था 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx. इसको क्या कर लें, हम सेपरेट कर लें, जो कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं. इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1, सो 4 इसका इंटीग्रल क्या होगा e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3. जो कोफिशिएंट होता है हमेशा नीचे आ जाता है. ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इंटीग्रल में नीचे आता है, और डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आता है. और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. और ये सब और e पावर 3x का इंटीग्रल जैसे देखा आपने e टू द पावर 3x बाई 3, ये सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम और करेंगे. ओके, तो ये फाइनल आंसर आपका. कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट का के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा और सेकंड के लिए अलग इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, तो दोनों का इंटीग्रल कांस्टेंट आप लास्ट में लिख सकते हैं.
या आप ऐसा सोच सकते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रल कांस्टेंट सपोज c1 आया, सेकंड का c2 आया, ये दोनों कांस्टेंट ही तो है, सपोज ये दोनों का सम क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट c ले लिया आपने, तो इस कांस्टेंट को हम कुछ भी रख सकते हैं, c माइनस सी लॉग सी, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, इस डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप या सेपरेट करके करें, दिस इज एक्स टू द पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो पावर क्या था यहाँ पे 2, तो पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो कांस्टेंट है बाहर लिखना है, बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 और ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको सेपरेट कर लें और कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म, और 1 प्लस ये लास्ट में लिखेंगे इंटीग्रल को कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स टू द पावर 3/3 प्लस बी एक्स टू द पावर 1 का एक्स टू द पावर n से आप कंपेयर करके कर लीजिए, एक्स टू द पावर 2/2 प्लस सी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और यहाँ पे एक इंटीग्रल कांस्टेंट लेना है तो आप कैपिटल सी लिख दो इसको। ओके, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है, छोड़ दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर x माइनस 1/√x होल स्क्वायर, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, a माइनस बी स्क्वायर सी हो गया a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट एलिमिनेट हो गया, माइनस 2ab 2√x इंटू 1/√x। ओके, ये कैंसिल आउट, इसको सेपरेट कर ले, इंटीग्रल ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं 1 का इंटीग्रल। ओके, ये सो ये आ गया x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड x माइनस 2 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, कई बच्चे 1/x का भी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको ले जाते हैं x टू द पावर -1 और इसको x टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो x टू द पावर 0/0 ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप क्या रखेंगे, लॉग मॉड x करेंगे। ठीक है, इससे क्या आ गया, ये तो नॉट डिफाइंड का केस आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में से कोई एक देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 11 आप उससे 12 के बेस पे कर सकते हैं। और ये है इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया x³ बाई √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4/√x। इसको आप सिंप्लीफाई करिए पहले तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू x³ माइनस 1/2, ये ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1/2 प्लस 3x टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू x टू द पावर -1/2 dx। So this is equals to x to the power 6 minus 1 5/2 प्लस 3 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 प्लस 4 x टू द पावर -1/2। अब हम इसका
इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से सारे इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, तो x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेते हैं c। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज इक्वल्स टू 2/5, ये डिनोमिनेटर में है वो कहाँ गया, न्यूमरेटर में, ठीक है। और x टू द पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1, अच्छा ये सिंप्लीफाई, यहाँ पे 5/2 प्लस 1 और होगा ना ये, तो ये 7/2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा ये, इसको करेक्ट कर ले हम, 2/7 ये हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 ये हो गया 3/2 अपॉन 3/2, इसको चलिए पहले एक स्टेप और ले लेंगे, x माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन 1/2, जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ये स्टेप को पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, या इसको भी एक साथ करिए, और ये क्या है 7/2, so this will be equals to 2/7 x to the power 7/2 प्लस 3 और ये 3 कैंसिल आउट, तो ये रह जाएगा 2x to the power 3/2 प्लस 2 4 8 x to the power 1/2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, इजी है, जिनको आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, which is integral of sec x into sec x plus tan x. So this is equals to sec square x, और ये सेपरेट कर लेते हैं इसको, प्लस sec x tan x, sec x into tan x dx। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec square x, so इंटीग्रल ऑफ sec square x विल बी इक्वल्स टू tan x प्लस ये sec x tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल क्या होगा, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ओके, इस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो इसीलिए इसका इंटीग्रल हो गया sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 19 इंटीग्रल ऑफ sec square x डिवाइडेड बाय cosec square x। हमको क्या करना है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके फॉर्म में लेके आना है, मीन्स इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, sec स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और 1/cosec स्क्वायर एक्स को लिखते हैं आप sin स्क्वायर एक्स। सो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर का कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, किसका है हमारे पास, sec स्क्वायर का, तो इसको हमेशा tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करें, इसको जस्ट लाइक अ फॉर्मूला आप याद कर ले, क्योंकि बहुत यूज होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको लिखिए ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। इंटीग्रल यहाँ पे यूज किया था, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इक्वल्स टू tan x, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको एक बार उसको लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको भी दोनों में डिवाइड कर दें, 2/cos स्क्वायर एक्स, और सेपरेट भी कर लेते हैं, -3 कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए,
कांस्टेंट का अंदर कोई काम नहीं रहता है, और एक कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया मैंने। सो 2 बाई कॉस स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर लिखा, कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर इज वी नो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस ये क्या हो गया tan x, और 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा लें ये। ओके, सो ये क्या आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ये तो जानते हैं हम tan x माइनस 3 एंड इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan x, ये क्या होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, ये जनरली हम इंटीग्रल को इंटीग्रेशन क्या देते हैं, तो वो इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जनरली बच्चे और बहुत सारे टीचर, हम भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कहते हैं, जबकि वो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है। ओके, तो ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है बस करना क्या है वो चीज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जेक्टिव द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो ये तो कर सकते हैं आप। ओके, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, और डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई वो आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई रूट एक्स, ये लिखा है। चलिए अभी इसको मैं रूट एक्स लिखा हूँ तो रूट एक्स ही कर दूँ, ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रल। तो इसको कर सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 प्लस ये हो गया एक्स टू द पावर माइनस 1/2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1। ये इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना, इतना टाइम नहीं रहेगा कि अब 1/2 प्लस 1 ऐसा लिखते जाए और लिखे करें, तो ये सब शॉर्टकट तरीके से आपको आना चाहिए। माइनस 1/2 प्लस 1 इज प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट t। So this is equals to 2/3 x to the power 3/2 plus 2 x to the power 1/2, है ना, इसको आप रूट भी लिख सकते थे 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये मैच कर लीजिए जो ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी, 2/3 x to the power 3/2 प्लस 2x to the power 1/2 प्लस c। So c will be the correct answer। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये आने चाहिए आपको, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होती है। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4, और अभी तो CBSE के 12th एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी आने लग गया, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको और अच्छे से करने हैं। यहीं कहीं से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। ये दो गिवन है, देन एफ एक्स इज व्हाट, ये एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। एफ एक्स इक्वल्स टू दिस मच, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें, मीन्स इंटीग्रल कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, ये इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 या एक्स टू द पावर माइनस 4 कर देते हैं। तो जानते हैं दोनों अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है, इनवर्स ऑपरेशन है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 4x³ का इंटीग्रल x टू द पावर 4/4 माइनस 3, ये x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 मीन्स माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 4 कैंसिल आउट, x टू दी पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, और ये हो गया 1 अपॉन x³ 3 भी कैंसिल हो गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये एफ एक्स आ गया। फर्स्ट, सिंस f2 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, f2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर f2 की जगह क्या आ गया 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2³ प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 4 कितना हो गया 2 4 8 16, और ये हो गया 1/8,
और दोनों ट्रांसफ़र किया तो ये नेगेटिव लग जाएगा। सो -8 एलसीएम, 8 6 आर 48, 4 8 1 इज 8 प्लस 4 12 प्लस 1, ये कितना आ गया, c की वैल्यू -129/8, देयरफॉर द फंक्शन विल बी, तो ये f(x) की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छे से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं इसको, x⁴ प्लस 1/x³ और c की वैल्यू क्या आ गई, -129/8। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इतने ही क्वेश्चन है, यस इतने ही क्वेश्चन है 22। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेशन के समझने की कोशिश कीजिए। ओके।